केजरीवाल और कॉकरोच गैंग को बड़ा झटका। 26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने किया अनशन खत्म। जंतर मंतर में कॉकरोच के गुंडों में छाया मातम। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ मुलाकात के बाद अपना अनशन तोड़ दिया है। सोनम वांगचुक का कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के समर्थन में 28 जून से अनशन पर थे। सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बैठक के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया। सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। लिखा, अभी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह व लेह लद्दाख के जो है एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैंने 26 दिनों के बाद अपना अनशन समाप्त किया है। वांगचुक ने आगे बताया कि इससे पहले अलग अलग राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझसे मिलकर यह पत्र लिखकर अनशन तोड़ने का आग्रह किया था। ये कदम विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते उठाया गया है। मैं बहुत जल्द एक अलग वीडियो में इन शर्तों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस बीच मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा ना होने देने को लेकर बहुत सतर्क रहें। इस बीच पीएम मोदी ने भी एक्स पर कहा कि मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त कर ले। इसकी तस्वीरें जो है सामने आ रही है। सोनम वांगचुक से जेपी नड्डा और आप कह सकते हैं कि मंत्रियों की मुलाकात किस तरीके से बातचीत हो रही है और उसके बाद उन्होंने बकायदा अपना अनशन, अपना भूख हड़ताल जो है समाप्त किया है। देखिए ये वीडियो। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. Sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth who were peacefully protesting on those dates, and that both the ruling party and MPs from the opposition have assured me that their discussions will happen on the floor of the Parliament regarding reforms in the examination system like NEET and others, and that we will also be discussing about the accountability of such lapses, and that we'll all make sure that such things never happen. No child, no parent will have to go through what these 20 children and their parents had to go through. I'm happy that you have assured me that, and I'm sure, as the children have been demanding, at the suitable time, I'm no one to dictate, you will take accountability in the ministry with the minister also as a responsibility, and I'm sure you are already considering. And with these assurances, I'm touched and grateful to the government, and I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. It should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters. So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast. And thank you. I have my leaders from the apex body of Ladakh, and the KDA were also here, and they have flown all the way from Ladakh. I'm grateful to them. Thank you.
And Gitanji, you have always been by my side and support, and I don't want to thank you, but express my feelings this way. Thank you. Hunger tastes better. तो साफ तौर पर आपने वीडियो देख लिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल संजय सिंह बौखलाए नजर आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि सोनम वांगचुक के नाम पर जो राजनीति चल रही थी कि सोनम वांगचुक के बारे में सरकार नहीं सोच रही है, सोनम वांगचुक को इस तरीके से छोड़ दिया गया है। अभिजीत दिपके वगैरह भी इस मामले पर जबरदस्त तरीके की बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है और इसी के साथ कहीं ना कहीं सीजेपी का प्रोटेस्ट भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, जो विपक्ष के नेता खासकर आम आदमी पार्टी केजरीवाल कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि एक मुद्दा था जिस मुद्दे के जरिए सरकार को लगातार टारगेट कर रहे थे, घेर रहे थे। और ऐसे में सोनम वांगचुक ने जिस तरीके से 26 दिनों बाद इस अनशन को खत्म कर दिया है, ये विपक्षी नेताओं के लिए बड़ा झटका है, जो इस आप कह सकते हैं कि पूरे प्रोटेस्ट को राजनीतिक रंग देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का पूरा जो है प्लान तैयार कर चुके थे। बता दें, सोनम वांगचुक को पहले दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कोर्ट से मांग की थी कि वांगचुक को इलाज के लिए मेदांता भेजा जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा उनकी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञ डॉक्टर की लगातार निगरानी जरूरी है। जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में वांगचुक से मुलाकात की। अनशन के दौरान तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें मेडिकल निगरानी के लिए भर्ती कराया गया था और अब वांगचुक ने जो है अपना अनशन तोड़ दिया है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक को लेकर जो है जबरदस्त तरीके की बयानबाजी जो है की जा रही थी। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करने के लिए बकायदा सलमान खान ने भी पोस्ट किया था। सीजेपी प्रोटेस्ट को अपना समर्थन देने के बाद सलमान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वीडियो सामने आया था जिसमें उन्हें कड़े एक्शन लेने की बात कही, तो उसके बाद उन्हें लिखा था स्टूडेंट्स पढ़ाई और सिक्योरिटी के मामले में टॉप प्रायोरिटी पर है, इसीलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और उनके पेरेंट्स को भी उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और मुझे यकीन है कि वो उन सभी लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे जो इस लीक के लिए जिम्मेदार है। तो स्टूडेंट्स प्लीज अपने प्रोटेस्ट और जो है प्रोटेस्ट को खत्म करिए और घर वापस जो है चले जाओ। साथ ही साथ सोनम वांगचुक को भी उन्होंने अपने पोस्ट में मेंशन किया था, लिखा था सोनम हो गया भाई, इसे आगे मत बढ़ाओ, अगर जरूरत पड़ी तो एक और दिन के लिए हिम्मत रखो, जिस पर मुझे शक है और कुछ खा लो। उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें घर का खाना भी भेज दूंगा। सिर्फ ये नहीं, बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा देर रात को एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में उन्होंने कड़ा से कड़ा एक्शन लेने की बात कही थी। बकायदा ऐसे सेल्फ मेड वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात उन्होंने कही थी, लेकिन उसके खिलाफ सख्त और जल्द कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। उनके इसी बयान के बाद फिर आपको देखना कि सोनम वांगचुक ने भी अनशन तोड़ दिया है और कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट है वो पूरी तरीके से कमजोर पड़ चुका है। अब सोनम वांगचुक ने जो अनशन खत्म किया है, जैसा कि हमने आपको बताया कि अभिजीत दिपके का बयान आया, उन्होंने कहा कि हम तो खुद ही कह रहे थे उन्हें कि इस अनशन को खत्म कर दो, लेकिन हमें धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए। क्या कह रहा है अभिजीत दिपके का, सुनिए। जंतर मंतर पर जो हमारा धरना चल रहा है वो जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। हम बहुत खुश है, वी आर वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी है, क्योंकि 26 से ज़्यादा दिन हो चुके थे। उनकी जान जो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है और हमारा जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। मीटिंग जो होगी वो एक न्यूट्रल प्लेस पर होगी, न्यूट्रल वेन्यू पर होगी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं। अभिजीत दिपके का आपने बयान सुन लिया। इसके साथ साथ इस मामले पर संजय सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कह रहे हैं संजय सिंह, क्योंकि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात पर भरोसा कर पाना भी मुश्किल हो रहा है कि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया, क्योंकि इस मामले पर ही वो लगातार राजनीति कर रहे थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी बड़ा झटका है। क्या कह रहे हैं संजय सिंह, सुनिए। 26वें दिन अपने अनशन को तोड़ दिया। तो आप इस सरकार का दोगला चरित्र देखिए कि कल 55 सांसदों का हस्ताक्षर करा के और एक डेलीगेशन जब मिलने उनसे गया था सांसदों का, तो वहाँ नहीं मिलने दिया मोदी जी की सरकार ने। और आज मंत्री गए मिलने, कोई बात नहीं, क्योंकि सबको उनके स्वास्थ्य की चिंता थी, सबकी अपील थी कि वो अपना अनशन खत्म करें। उनका जीवन इस देश के लिए अमूल्य है, लेकिन जो आंदोलन के मुद्दे हैं, इस देश के करोड़ों युवाओं के मुद्दे हैं,
उस मुद्दे का क्या हुआ? मुसद्दा तो मिल गया नरेंद्र मोदी जी को, कह रहे हैं हमें मुसद्दा मिल गया, मेरे ख्याल से वो मसौदा कहना चाह रहे होंगे। लेकिन जो डिमांड थी आंदोलनकारियों की, उसमें से कौन सी डिमांड उनकी पूरी हुई, ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए शायद जो सीजेपी है उसके नेता अभिजीत दीपके ने ये कहा कि भाई अनशन खत्म होगा लेकिन आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि 1 करोड़ रुपए जो लोग मृतक थे उनको मुआवजा देने की बात, जिन्होंने आत्महत्या की थी, जिन नौजवान छात्र छात्राओं ने, इसके अलावा जो आंदोलनकारी हैं उन पे मुकदमे न लिखे जाएं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा हो, ये जो डिमांड्स थी नौजवानों की, उसका क्या हुआ, उस पे सरकार क्या करेगी वो देखना होगा। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, इस देश के करोड़ों युवाओं का आंदोलन है, जब तक ये आंदोलन चलेगा हम लोग आंदोलन के साथ हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री जी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, जिसकी डिमांड ही किसी ने नहीं की। फास्ट ट्रैक कोर्ट की असलियत ये है कि इस देश में बलात्कार के मामलों से लेकर एसिड विक्टिम के मामलों से लेकर तमाम चीज़ों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान है। लेकिन पॉक्सो के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट है, लेकिन उसमें भी सालों साल न्याय मिलने में लग जाता है, क्योंकि जब जांच एजेंसियां सही समय पे सबूत नहीं देंगी तो कार्रवाई कैसे करेगी कोर्ट। और खुद नीट के पेपर लीक में मोदी जी के अधीन आने वाली सीबीआई ने 2024 में 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं की, इस आधार पर पेपर चोरों को बेल मिल गई। अब आज की बात हम कर लेते हैं, जब प्रधानमंत्री फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, उस समय सीबीआई ने संजीव मुखिया के बारे में लिख के दिया कि 2026 नीट पेपर लीक में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो जब आपकी सीबीआई सबूत ही नहीं देगी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या कर लेगा भाई? फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या नतीजा निकल जाएगा? इसलिए ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात तो बड़ी हास्यास्पद है और कहीं ना कहीं ये आंदोलन को भटकाने की कोशिश है। सर, प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए, मैं उसी वीडियो संदेश की ही बात कर रहा हूँ जो उन्होंने जारी करके बोला है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ऐसी तो कोई डिमांड छात्रों की थी नहीं। साथ ही उन्होंने लेकिन एक ट्वीट और करते हुए ये साथ में कहा कि सोनम जी से वह आग्रह करते हैं कि डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें, जल्द से जल्द अपना पुराना वजन वापस करें, और वो कह रहे हैं कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सोनम जी स्वस्थ रहें। देखिए, ऐसा है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। 25 दिन से सोनम वांगचुक जी आमरण अनशन पे थे। प्रधानमंत्री को उनकी सुध लेने की फुर्सत नहीं मिली। पूरी दुनिया की सैर उन्होंने की, मेलोडी चॉकलेट उन्होंने खाई, लेकिन एक व्यक्ति अपना जीवन दांव पे लगा के नौजवानों का मुद्दा उठा रहा था, उसके बारे में बातचीत करने की फुर्सत प्रधानमंत्री को नहीं थी। जब वो देख रहे हैं कि आंदोलन का विस्तार पूरे देश में हो रहा है, तब वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनका ये दोहरा चरित्र लोग समझ रहे हैं। तमाम आपने बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।